خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے، جہاں سے ہمارے بیورو چیف میاں عبدالغفور رپورٹ کر رہے ہیں۔ ساہیوال میں پنجاب پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن فارم زونگ ساہیوال ڈویژن کے تقریب حلف برداری کا پروگرام مقامی ہوٹل میں منعقد کیا گیا، جس میں پنجاب کے عہدیداران نے شرکت کی، جن میں مرکزی صدر طارق جاوید، رانا قاسم چیئرمین ریڈ کمیٹی پنجاب، میاں محمد عمران چیئرمین فارمر ونگ پنجاب، شیخ عصمت سلیم سرپرست اعلیٰ فارمنگ ساہیوال، مہر احتشام طارق چیئرمین ساہیوال، عمیر خان چیئرمین فارمنگ پاک وطن، شفیق شاہد صدر فارمر ونگ ساہیوال کو ان کے عہدوں پر ذمہ داری لینے پر مبارکباد اور اپنے علاقے کے مسئلوں کو اجاگر کرنے پر کام کرنے کی ہدایت کی۔ ڈسٹرکٹ سجاول میں ایس ایس پی سجاول کو ہٹانے کے لیے سیاسی سماجی کا احتجاج۔ مزید جانیے ہمارے کرائم رپورٹر اشرف جت سے، جو لائن پر موجود ہیں۔ جی اشرف جت، کیا اپڈیٹ ہے؟ ڈسٹرکٹ سجاول ایس ایس پی آفس کے سامنے یہاں پر لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ آئیے اس سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سجاول ضلع بدعملی کے عروج پر ہے اور یہاں کی انتظامیہ جو ہے وہ دین میں سوئی ہوئی ہے اور کوئی بھی انتظامیہ کی طرف سے ایسی پیش رفت نہیں ہوئی جس سے یہ جو کرمنل ہے، جو ڈاکو ہیں، وہ پکڑنے آ سکے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ منشیات ہوئی ہے وہ سر عام چل رہی ہے، ہر دکان پہ، ہر اسٹاپ پہ، ہر روڈ پہ، ہر راستے پہ، جہاں جہاں کی دکانیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، وہاں پہ سر عام جو ہے وہ منشیات چل رہی ہے، منشیات کے اڈے قائم ہیں اور یہاں جوا کے اڈے قائم ہیں، مگر انتظامیہ جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ تو ہم یہ آپ کے توسط سے نیوز کے حوالے سے، نیوز ون کے حوالے سے ہم آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اعلیٰ حکام سے، سینٹرل گورنمنٹ سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، چیف آف جسٹس سے، کہ مدارہ سجاول ڈسٹرکٹ میں جو یہ بدامنی کی لہر ہے اس کو ختم کرائیں اور یہاں پہ انتظامیہ ہے ان کو پابند بنائیں، تاکہ وہ جو غریب لوگ ہیں، جو بے قصور ہیں، ان کو پکڑ کے، جو صحافی برادران ہیں ان کے اوپر بھی زیادتیاں ہوئی ہیں اور جو شہری سوشل ورکر ہیں ان کے اوپر بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور وہ بھی ان ڈاکوں کے عطاب کے نیچے آ چکے ہیں۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو انتظامیہ ہے یہ فوراً ان کے خلاف جو ڈاکو ہیں، جو چور ہیں، جو لٹیرے ہیں، ان کے خلاف بھرپور آپریشن کر کے ان کو کیفرے کردار تک پہنچائے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور جو یہاں کے کمیونسٹ ہیں، یہاں کے جو سوشل ورکر ہیں، یہاں کے جو صحافی ہیں، یہاں کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جو سیاسی سماجی تنظیموں کے کارکنان ہیں، ان کو تحفظ دیا جائے اور یہاں کی عوام کو تحفظ دیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں میہر سے، ہمارے نمائندے امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق نیو گوٹ پولیس تھانہ کی حدود میں 2 دن پہلے درگاہ حضرت مختوم سعیدی موسانی کی بازار سے دکانوں کی 4 سولر پلیٹ چوری ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی۔ پولیس نے ایک چور کو گرفتار کر کے ایک صورت میں سولر پلیٹ ریکور کر لی۔ چور سہیل عرف سوہو کو پولیس نے ریمانڈ لیتے ہوئے دوسری چوروں کو سراغ لگانے کے لیے جگہ جگہ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور ایس ایچ او اللہ بچایو شکوک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ چوری کا کیس داخل کرنے کے بعد ہم نے چوروں کا پیچھا کیا ہوا ہے۔ اسی دوران ہم نے سہیل عرف سوہو کو گرفتار کر کے ان سے چوری شدہ سولر پلیٹ پکڑ لی گئی ہے اور ہم نے دکانداروں کو سولر پلیٹ واپس کر دی ہے۔ اسی دوران دکاندار ایسوسی ایشن صدر ارشاد علی گدی نشین گلاب احمد پیرزادہ، دکاندار امیر علی لاکیر، صحافی معشوق سلنگی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں مامو کانجن سے، ہمارے نمائندہ شاہد اقبال کھچی کے مطابق رائے تنویر زرینہ دوستوں کو مبارکباد دینے کے پی کے پہنچ گئے۔ تحریک انصاف یوتھ ونگ کے مرکزی سینئر رہنما اور پی پی 103 سے امیدوار رائے تنویر احمد اپنے درینہ تحریکی دوست نومنتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد دینے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ گئے، جہاں سب سے پہلے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے والد مرحوم کی تعزیت کی اور بعد ازاں وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر علی امین گنڈا پور کو دلی مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ در اثنا رائے تنویر اپنے درینہ دوست نومنتخب ایم پی اے سید قاسم علی شاہ کی رہائش گاہ بھی گئے، وہاں سید قاسم علی شاہ نے اپنے
दरीना दोस्त का अपनी रहायशगाह के बाहर आकर खसूसी इस्तकबाल किया। इस मौके पर राय तनवीर अहमद खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया और सईद कासिम अली शाह को सूबाई वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। राय तनवीर अहमद ने नुमाइंदा और न्यूज शाहिद इकबाल खिची से तफसीली बातचीत करते हुए कहा कि मुबारकबाद देने के लिए केपी के दौरे पर हूँ। अब रुक करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डाकुओं ने मुगवी की वीडियो जारी कर दी। डाकुओं ने मुगवी हिंदू ऋतिक कुमार की तशद्दुद की वीडियो जारी कर दी। डाकू वीडियो में तशद्दुद करके तावान की रकम के लिए कह रहे हैं। दूसरी जानिब ऋतिक कुमार की बाजियाबी के लिए एसएसपी घोटकी के ऑफिस के सामने एहतजाज। 5वें रोज भी दाखिल पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कच्चे में ऑपरेशन को 2 रोज गुजर गए। ताहाल पुलिस को कोई हतमी कामयाबी हासिल नहीं हुई, जबकि डाकुओं की जानिब से मुगवी ऋतिक कुमार की वीडियो बनाकर वायरल कर दी गई है। वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है कि मुगवी को किस तरह जंजीरों से जकड़ा हुआ है और मुगवी अपने रिहाई के लिए रो रो कर दुहाई कर रहा है। मुझे आजाद करो, किसी भी तरह से इनके मुतालबात मानो और मुझे आजाद करवाओ, वरना ये मुझे मार देंगे। गुर्बत और मुसीबत रिश्तों को दूर नहीं करती, इन्हें छांव देती है। सोना अलग रेत अलग। बाबा टेलर शॉप खुर्शीद कॉलोनी के ऑनर कोटरी बोलहाड़ी के रहायशी तारिक जानूरी ने बूढ़ी और बेसहारा मां की मदद करके मिसाल कायम कर दी। गुज़िश्ता दिन मशहूर फनी टिकटॉकर अली हैदर शीरी एक रोड हादसे में शहीद हो गया था और किस तरह अली हैदर की बूढ़ी मां को अल्लाह ने इनकी मदद का वसीला बनाकर इनके घर भेजा, जानते हैं हमारे ऑन न्यूज के रिपोर्टर यामीन बलोच की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला जमशेदपुर के तहसील कोटरी खुर्शीद कॉलोनी में। आपको मैं बताता चलूँ कि गुज़िश्ता दिन अली हैदर शीदी जो चंबड़ का रिहायशी था, मशहूर टिकटॉकर था, जो लोगों को अपने फ़न से लोगों को हंसाता था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो सिविल अस्पताल उसको लेके गए, लेकिन जो है ना वो अपनी ज़ख्मों की ताब नहीं ला सका, तो वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। तो उनके घरेलू हालात इस कदर ख़राब थे, तो यहाँ पे सियासी समाजी कारकुनान ने अपनी मदद आप तहत उनकी माली मदद की। अगर मैं बात करूँ यहाँ के खुर्शीद कॉलोनी के इलाके में, तो हमारे साथ यहाँ पे तारिक झांवरी हैं जो सियासी समाजी के साथ टेलर का काम भी करते हैं, लेकिन उसकी एक आवाज़ बुलंद करने पर तमाम जितने भी यहाँ पे सियासी समाजी कारकुन के साथ साथ जितने भी शहरी हैं, अवाम हैं और जो भी इनके फ़ैन फॉलोइंग हैं, इन्होंने है ना बेशुमार मदद की। तो इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तारिक जावरी। उनकी ज़बानी सुनते हैं कि उनको एकदम से ये ख्यालात कैसे आया। तारिक साहब, पहले तो मैं है ना बहुत आपको मुबारक पेश करता हूँ कि अल्लाह ने आपको इतनी तौफीक दी और आपने गरीब की मदद की, उनकी माली मदद की। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपको अचानक ये ख्याल कैसे आया। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ऑन टीवी वालों का शुक्रगुज़ार हूँ, आप हमारे पास चल के आ रहा है, आपका शुक्रिया दिल से। सर, वो एक छोटे से गांव का एक गरीब और सिंध का बड़ा सुपरस्टार था। जैसे ही हमने उसकी मौत की खबर सुनी, सच पूछो हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे घर में कोई फौतगी हो गई हो। तो मेरे फेसबुक की टाइमलाइन पर सिर्फ उसकी ताज़ियत की खबरें चल रही थी कि अल्लाह ताला उनके वालिदैन वालदा को सब्र जमील अता फरमाए। उनके वालिद को फौत हुए 5 साल गुजर चुके थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस गरीब वालदा की दिलजोई के लिए, उन्हें हम आसरा देने के लिए हम एक छोटा सा काम क्यों ना करें। क्यों ना हम इस रवायत को ख़त्म करें और जो हमारे सिंध की पुरानी रवायत है उसे हम लेकर आएँ, उसे हम बरकरार रखें। क्योंकि सिंध ने हमेशा मेहमान नवाजी की है, एहसास दिल और बड़े दिली का जो है ना फराग दिली का उन्होंने हमेशा काम किया है। तो मैंने फेसबुक पर एक वीडियो रखा कि भाई मुझे एक हफ़्ते के अंदर जो हमारे सिंध का छोटा सा गरीब और बड़ा सुपरस्टार था अली हैदर शीदी, उसके लिए हमें 1 लाख रुपए जमा करना है। और मैं सिंध की गयूर अवाम को, बाशऊर अवाम को मैं अपील करता हूँ कि मेरा साथ दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो आपका 1-1 रुपया होगा वो मैं बाहिफाजत अली हैदर की वालदा के हाथों में देकर आऊँगा। तो जैसे ही उस पोस्ट को आधा घंटा हुआ और मुझे रेस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, तो सबसे पहले जो बड़ी रकम थी वो 20,000 रुपये किसी दोस्त ने मुझे कश्मीर से भेजी जी। तो उस दोस्त को मैं सलाम पेश करूँगा। उस दोस्त की वजह से मेरे हौसले बुलंद हुए। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये जो 1 लाख रुपये है ये एक बड़ा माइलस्टोन है, ये कोई जबल की बड़ी पहाड़ की जो है ना बड़ी चोटी है, ये मैं सर नहीं कर सकता, यानी कि मैं लाख रुपए जमा नहीं कर सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन दोस्तों ने मेरा साथ दिया। सऊदी से, दुबई से, बहरीन से और सिंध के छोटे छोटे गाँव घोटों से मेरी हेल्प की गई।
जो और उन्होंने आपको देखा था बाय फेस या क्या? बाय फेस सिर्फ मुझे मेरे फेसबुक पेज पर देखा था, उन्होंने सिर्फ मुझे देखा, और जिस वीडियो पर उन्होंने इतनी बड़ी रकम भेजी है ना, उस वीडियो में मेरी तस्वीर नहीं थी। उस वीडियो में सिर्फ अली हैदर की तस्वीरें थी और मेरी बैकग्राउंड में मेरी आवाज़ थी सिर्फ, और बैकग्राउंड में सैड म्यूज़िक लगा हुआ था, है ना। तो सिंध की आवाम ने इतना बड़ा प्यार दिया, जो मुझे 1 लाख रुपए एक हफ़्ते के अंदर अंदर कलेक्ट करना था, वो मैंने 1.5 दिन के अंदर अंदर मेरे पास 1,11,000 रुपये हो गए थे। तो मुझे लगा कि यार सिंध की आवाम की जो दिल है ना, वो पाकिस्तान में कैसी आवाम की, किसी भी इंसान की ऐसी दिल नहीं हो सकती जितनी बड़ी दिल सिंध की आवाम की है। मैं सिंध की आवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बिना देखे, बिना मुझसे बात किए हुए 2,31,000 रुपये मेरे अकाउंट में भेज दिए, और कल मैं चंबड़ जाकर उनकी वालदा के हाथ में देकर आया। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, आगे आपका क्या इरादा है? जितने भी मुस्तक हैं, गरीब आवाम तो बहुत है, तो आपको क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को कि वो गरीबों की सर, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं ये काम करके आया हूं, तो मेरे फेसबुक पेज के जो इनबॉक्स है ना, वो भर गया है। सिंध में इतनी गुर्बत है कि कोई यूनाइटेड नेशन चाहे तो वो ख़त्म हो सकती है, बाकी पाकिस्तानी हुकूमत के बस की ये बात नहीं है। पहले मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी हुकूमत को और सिंध की गवर्नमेंट को ऐसे गरीब लोगों का सहारा बनना चाहिए, उनकी आवाज़ बननी चाहिए। और दूसरी बात, मैं सिंध के जो सोशल एक्टिविस्ट हमारे दोस्त हैं, जो नौजवान हैं, मैं उनसे अपील करूँगा कि आप अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, जहाँ पर भी देखें कि गरीब मुफलिस लोग हैं, सबसे पहले आप अपने पड़ोस से स्टार्ट करें, अपने गली मोहल्ले से स्टार्ट करें, रिश्तेदारों से स्टार्ट करें। देखें जो मुस्तहिक हैं ना, आप पहले भरपूर उनकी मदद करें। मैं अभी रमज़ान शरीफ आने वाला है, और रमज़ान शरीफ में माशाल्लाह से हमारे जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं, वो एक चीज़ के जो अगर 10 रुपये रेट होगा तो वो 90-100 रुपये में हमें दी जाएगी, यानी कि शैतान से भी आगे हमारे यहाँ के जो हुक्मरान हैं ना। तो मैं अपनी जो सोशल एक्टिविस्ट हमारे दोस्त हैं, जो इंसानी हकूक़ के अलम बरदार हैं, मैं उनको कहूँगा कि रमज़ान शरीफ में आगे निकलें और झोली फंड करें। झोली फंड करके घरों में जाएं, जो सरहदी वाले लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास जाएं, उनको बोलें कि भाई हमें अपने गरीब आवाम के लिए कुछ करना है। तो इंशाल्लाह हम मिल बांट कर ऐसा काम करेंगे, इतना डोनेशन जमा करेंगे, जो हमारे मोहल्ले के गरीब लोग हैं ना, हम इंशाल्लाह उनकी ईद करवाएंगे। ये तारिक जावरी साहब का पैगाम सुना, और ये पैगाम वज़ीर आला सिंध के लिए एक तमाचे से कम नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी जद्दोजहद के तहत एक गरीब बेसहारा की मदद की। तो ये है ना पैगाम उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि है ना, जो यहाँ पे नाम नहाद सियासी समाजी MP MN है, उसको अभी है ना नींद की गफलत से जागना चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ यामीन बलोच, ऑन न्यूज़। शेरगढ़ में बरातियों पर फायरिंग, जानी नुकसान ना हुआ। गाड़ी उल्टने से दूल्हा बेहोश, ड्राइवर जख्मी। साहिवाल से मराते बली की बारात 18D अब्दुल सत्तार के घर आ रही थी। जब 19D शेरगढ़ के करीब पहुंची तो बिला नंबरी 125 मोटरसाइकिल पर 2 नामालूम सवारों ने तकौफ करके फायरिंग कर दी। फायरिंग से बराती मौजाना तौर पर महफूज रहे, मगर गाड़ी उल्टने से दूल्हा मरातब अली वल्द अल्लाह दिता सकना नूर शाह साहिवाल बेहोश हो गया, जबकि गाड़ी का ड्राइवर मामूली जख्मी हो गया। बरातियों ने 15 पर डकैती की कॉल चला दी। पुलिस थाना शेरगढ़ मौके पर पहुंच गई और मौका मुलाहजा करके बताया कि वकुआ थाना हुजरा शामकीम का है, जिस पर थाना हुजरा की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अरसलान खान जोया आया SHO के मुताबिक डकैती का वाकया ना लगता है, ताहम मुखालफत समेत हर जाविये से तफ्तीश की जा रही है। खबर शामिल करते हैं रुन्नाबाद से। वतन अजीज के इस्तेहकाम, मसाइल के हल और बहरानों से निकालने के लिए कौमी इत्तफाक राय की जितनी ज़रूरत आज है, पहले कभी नहीं रही। तमाम सियासी जमातों, उस्ताज़ा, तुलबा, उलमा कराम, मशाइख, वकला, ताजरान, सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान के हर छोटे बड़े इदारे को एक मेज़ पर बैठकर मुल्क पाकिस्तान के मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश करना होगा। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम इत्तेहादी जमातों के लीडरान को मुबारकबाद पेश करते हैं। इन खैरात का हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई टिकट होल्डर राना सनाउल्लाह खान एडवोकेट ने आसिफ अली ज़रदारी के सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा। राना सनाउल्लाह खान एडवोकेट ने कहा कि वतन अजीज के मसाइल का तदारुक रखने वाली तमाम सियासी जमातों ने साबिका रवायात और इख्तलाफ राय को पसे पुश डालकर मुल्क को मुआशी, सफारती, सियासी बहरानों से निकालने के लिए साथ चलने का बेहतरीन फैसला किया है। सियासत होती रहे, इख्तलाफ चलते रहेंगे, लेकिन मसाइल के हल का ये फाइनल राउंड अब जरूरी हो चुका है। तमाम लीडरान की
सियासत वतन अजीज की माशी मजबूत की मरहून मिन्नत है। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी का बतौर सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इंतखाब वतन अजीज के इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ बेहतरीन पेशरफ्त है। इनके इंतखाब पर तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन, लीडरान, ओहदेदारान और कारकुनान को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। इस मौके पर राना सनाउल्लाह खान एडवोकेट ने कहा, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जिए भुट्टो पाकिस्तान के गयूर अवाम, जियालों, वर्करों और तमाम शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। अल्लाह पाक का ख़ास करम हुआ है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अब वफाक भी मजबूत होगा और इंशाअल्लाह सूबों को भी उनके हकूक़ यकसा मिलेंगे। मैं तमाम जियालों, तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को, जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब मोहतरम चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुबारकबाद देता हूँ और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब खुशहाली भी आएगी और इंशाअल्लाह जमहूरियत का तसलसल भी जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। ब्यूरो चीफ मंडी बहाउद्दीन फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन मेन बाजार गुजरात रोड और सरगोदा पर मुतअद्दिद दुकानदारों का दुकानों के आगे रखा गया सामान जब्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज की नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ चलाई गई मुहिम के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन शाहिद इमरान मार्थ और चीफ ऑफिसर मलिक तारिक ज़िया की खुसूसी हिदायत पर अमल करते हुए मलिक माजिद हुसैन रेगुलेशन ऑफिसर जिला कौंसल ने अपने अमला के हमरा अड्डा पहाड़िया वाली का अचानक दौरा किया और गुजरात सरगोदा रोड के अलावा मेन बाजार में नाजायज तजावुज़ात करने वाले दुकानदारों की दुकानों के आगे रखा जाने वाला सामान, जिनमें साइन बोर्ड, बेंच, लोहे और स्टील की ग्रिलें उठाकर बाहुकुम सरकार जब्त कर ली और दीगर दुकानदारों को भी सख्ती से वार्निंग देते हुए कहा है कि सरकारी रोड को अपनी मलकियत बनाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे और भारी जुर्माने भी अदा करना होगा। लिहाजा नाजायज तजावुज़ात करने वाले दुकानदार अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना इनके खिलाफ मजीद सख्ती से पेश आया जाएगा। मेन बाजार में ऑपरेशन के बाद बाजार खुला नजर आने लगा और खरीदारों ने सुख का सांस लिया। जवान मौके पर जाम बहक हो गया। लाहिकीन ने नौजवान की लाश को सड़क पर रखकर एहतजाज भी किया। आधे घंटे बाद लाहिकीन के पुलिस से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद रोड्स को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहिकीन के मुताबिक जाम बहक होने वाला नौजवान मुबीन ट्राली के टायर को पंक्चर लगा रहा था। पीछे से डंपर ट्रक ने नौजवान को कुचल दिया, जिसकी वजह से नौजवान मौके पर जाम बहक हो गया। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। CPO फैसलाबाद के मुताबिक लाहिकीन को पूरी तरह इंसाफ मिलेगा। जान बताइए क्या मामला है? अब रोड पे या यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ, क्या मसला है? हमारे गांव का एक लड़का गन्ने की ट्रैली लेके आ रहा था, उसको पीछे से टच किया डंपर ने जी। और उसको मार दिया जी। नीचे देके मार दिया, गन्नों के नीचे देके मार दिया। अब आपका क्या मुतालबा है? आप रोड पे आए हैं। हमारी FIR के लिए हमें किसी ने पूछा नहीं अभी तक। वो बच सकता था, रात का वो बच सकता था, और वो बचाते। अगर कोई कोशिश की जाती तो वो बच सकता था। पुलिस क्या कहती है? किसी ने नहीं पूछा अभी तक। 1:30 बज गया, अभी हम डेड बॉडी लेके हॉस्पिटल में बैठे हैं 3 घंटे से। आपने 15 पे कॉल की भाई? सबको बताया हम लोगों ने, किसी ने नहीं पूछा अभी तक। अब आप RPO CPO से क्या मुतालबा करते हैं? हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। नाम है जी, मौत होने वाला जो है वो मेरा रियली में वो मेरा भतीजा है। वैसे रिश्ते की बिना पर मैं उसको अपने बेटे की तरह। हुआ क्या था उसके साथ? था वो रोड पे गन्ने की ट्राली लेकर जा रहा था जी। उसका टायर पंचर हुआ जी। वो साइड पे बिल्कुल कॉर्नर पे जी। ट्राली खड़ी करके टायर पंचर के लिए जैक लगा रहा था जी। पीछे से ट्राली को हिट किया डंपर ने या ट्राला वगैरह ने जी। डंपर करने से ट्राली उल्ट गई है और वो मेरा बच्चा जो है वो नीचे आ गया जी। और उसकी डेथ हो गई है। मैं आपने अब ये रोड ब्लॉक किया हुआ है, अब क्या मुतालबा है? क्या चाहते हैं आप? था कि जो खनजीर SHO सूर अबलीस से मेरी जो खुली अलान बात अभी वो है, मैंने उससे अपनी हेल्प लेनी थी और उसको अपना रियली बकुआ बताना था
और उस बंदे ने मुझे 4 घंटे से टच नहीं किया, अभी घर पे सोया पड़ा था। अच्छा ये बताइएगा, आप एक टांग से मजदूर हैं? ब्यूरो चीफ मंडी बहाउद्दीन फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब जियालों का जश्न, भंगड़े और आतिशबाजी फालिया। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद इरफान यासीन के दफ्तर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का सदर आसिफ जरदारी के दूसरी बार सदर मुमलिकत मुंतखब होने की खुशी में जश्न। डिवीजनल सदर आसिफ बशीर भागट और जिले सदर इरफान यासीन और तहसील इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फयाज रसूल मिर्जा कैसर साहिब फालिया समेत कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। खबर शामिल करते हैं रुन्नाबाद से। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहले बैत सहाबा कराम से मोहब्बत, इंसानियत का एहतराम दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। हमारी नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक आस्थान आलिया फैजुल हसन तनवीर रहमतुल्लाह अलैहा के सजादा नशीन और रूहानी पेशवा पीर सैयद अहमद कमाल शाह की नई रिहाइश का वाक़या मॉडल एवेन्यू हरुनाबाद के इफ्तिताह के मौका पर महफिल से खिताब करते हुए मुफ्ती आजम हरुनाबाद मुफ्ती मुनव्वर हुसैन सईदी ने कहा है कि बरसगीर पाको हिंद में इस्लाम औलिया कराम ने फैलाया और बेशुमार लोगों को गुमराही के अंधेरों से निकालकर इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया और आज भी इनके कायम किए हुए आस्थाने रश्द व हिदायत के मरकज हैं। पाकिस्तान के मरूफ नात ख्वान कारी मुश्ताक रसूल ने बारगाह रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया, जबकि पीर मकसूद चिश्ती ने आरफाना कलाम से महफिल पर वजह तारी कर दिया और खूब दाद वसूल की। मुफ्ती इलामा खुशी मोहम्मद कारी, गुलाम रसूल हाफिज शेख मोहम्मद ताहिर सईदी, इलामा मोहम्मद काशिफ काशी भाई, इलामा मोहम्मद शकील सईदी, सैयद सुहेल आबिद शाह लजपाल सरकार, डॉक्टर राव अहमद हसन सईदी, मियाँ आबिद हुसैन जिया, गुलाम शबीर साबरी, सैयद बिलाल मुश्तबा गिलानी, साहबजादा सैयद मोहम्मद अली जैन समेत उलमा इकराम शहरी माहिदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर पीर तलहा तनवीर और पीर सैयद ताहा तनवीर नकवी ने पुरतकल्लुफ इशाइया दिया। अब रुक करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदे रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक कैडेट कॉलेज में नए सर सैयद अहमद खान के नाम से मंसूब हॉस्टल की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी साबिका MPA सरदार बारी खान पताफी को मदऊ किया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिका MPA अब्दुल बारी खान पताफी का प्रिंसिपल ब्रिगेडियर रिटायर्ड आमिल खान और दीगर मेंबरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सर सैयद अहमद खान हॉस्टल का इफ्तिताही रिबन काट कर दुआ मांगी गई और ग्राउंड में दरख्त का पौधा भी लगाया गया। कैडेट कॉलेज असेंबली ग्राउंड में मार्च में पास होने वाले स्टूडेंट को मुबारकबाद पेश की। स्टूडेंट ने बेहतर कैरियर के लिए काउंसलिंग का एहतमाम किया जाए। प्रिंसिपल घोटकी कैडेट कॉलेज की जानिब से बारी खान पताफी को शील्ड ऑफ मेमन 2 पेश की गई। सरदार अब्दुल बारी खान पताफी ने कॉलेज फैकल्टी मेंबरान और स्टूडेंट्स के दरमियान ग्रुप फोटो भी निकलवाई। थाना सदर के इलाका में फायर लगने से एक शख्स शदीद जख्मी। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर के इलाका घोमा में फायर लगने से एक शख्स शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। थाना सदर पुलिस के मुताबिक साद वल्द मोहम्मद अमीन अराई हवेली में सोया हुआ था कि वजाहत नामी मुलजिम ने पिस्टल से फायर कर दिया। घोमा गोली साद के चूकने पर लगने से साद शदीद जख्मी हो गया। हवेली में मौजूद दीगर अफराद ने मुलजिम वजाहत को मौके पर पकड़कर थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत साद को सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर समाजी रहनुमा मोहम्मद शहजाद असलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि माह रमजान बख्शिश और निजात का महीना है। माह मुकद्दस में हम सच्चे दिल से दुआएं करके अपने गुनाह बख्शवा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि माह रमजान हमदर्दी और इत्तफाक का महीना भी है। रोजे से भूख प्यास और गुर्बत और फ्लास का एहसास शिद्दत से होता है। उन्होंने कहा है कि रोजे की फर्जियत का असल मकसद ही ये है कि मुसलमान एक माह पाबंदी से रोजा रखकर अपने ईमान की बैटरी को चार्ज करने का सुनहरी मौके से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। मोहम्मद शहजाद असलम चौधरी ने कहा है कि जब ये मुबारक महीना आए तो इसका हम जबरदस्त इस्तकबाल करें ताकि साबिक कोताहियों का अजाला कर सके। उन्होंने कहा है कि इस माह रमजान का इस्तकबाल करके खुद भी फायदा उठाएं और मुस्तकीन को भी फायदा पहुंचाएं। यह महीना हमदर्दी और खैर ख्वाही का तकाजा है। ये भी है कि अपने गरीब भाइयों को अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ बुलाया जाए। मोहम्मद शहजाद असलम चौधरी ने कहा है कि माह रमजान का अवलीन तकाजा अल्लाह ताला की बंदगी का एहसास उजागर करना है। रोजा महज भूख या प्यास का नाम नहीं बल्कि अल्लाह ताला की अताअत की मशक है। रोजे का मकसद जिंदगी में अल्लाह ताला की बंदगी करना को जाहिर करता है।
دورنگی اور منافقت کی روش کو ترک کر کے اپنی آخرت کو संवारने کی کوشش کیجیے تاکہ آخرت کی تیاری ممکن ہو سکے۔ رمضان مبارک میں ہم اپنے نفس، خاندان، برادری، معاشرتی رسوم راج کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر فوقیت تو نہیں دے رہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل بندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ ماہ رمضان واحد مہینہ ہے جس میں ہم اپنے تمام گناہ معاف کروا سکتے ہیں۔ اس موقع پر ریاض آصف خان، شوکت خان لشاری چودھری، ارشاد علی، محمد انور چنیوٹی، محمد ناصر اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک وطن سے زمین سے 10 فٹ گہرے گرلز پرائمری اسکول کی بوسیدہ عمارت کسی بڑے حادثے کی منتظر۔ بارشوں میں 10 فٹ سے زائد پانی جمع ہونے سے بچیاں اسکول جانے سے قاصر۔ اسکول کی تعمیر کے لیے اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے، فوری تعمیر کا مطالبہ۔ نواحی علاقے ٹبہ شیرکوٹ میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول سطح زمین سے 10 فٹ گہرا ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق 1993 میں تعمیر ہونے والی عمارت انتہائی بوسیدہ اور کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ بارشوں کے دوران 10 فٹ پانی اسکول میں جمع ہو جاتا ہے، بچیاں اسکول جانے سے قاصر ہوتی ہیں۔ اسکول کی چھت دیواروں انتہائی بوسیدہ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ روزانہ خوف کی عالم میں بچوں کو اسکول روانہ کرتے ہیں۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر تعلیم، دیگر متعلقہ حکام نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی میں ٹبہ شیرکوٹ کا رہائشی ہوں اور یہ سکول تقریباً 1993 سے بنا ہوا ہے۔ بوجہ سیوریج یہ سکول سطح زمین سے تقریباً 10 فٹ گہرا ہو چکا ہے اور جب بھی بارش آتی ہے تو یہ تقریباً 5 یا 6 فٹ سکول کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور تمام بلڈنگ جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور کسی بھی وقت یہ کسی بہت بڑے سانے کا شکار ہو سکتا ہے سکول۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکٹری وزیر تعلیم تمام سے درخواست ہے کہ اسے اپ گریڈ کیا جائے۔ میں ٹبہ شیرکوٹ میں ایک سکول ہے پرائمری جس کی عمارت بہت ہی خستہ حال ہے، چھتیں پھٹی پڑی ہیں، دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں اور گہرائی اس کی تقریباً 8 سے 10 فٹ نیچے گہرائی میں، جو کہ بہت ہی خستہ حالی کا شکار ہے۔ اگر بچے پڑھنے آتے ہیں تو والدین اعتراض کرتے ہیں کہ بچے ہم نہیں بھیجیں گے کیونکہ وہ عمارت ہی خستہ حال ہے۔ اگر ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ خدا را ہمارے بچوں کے حال پہ رحم کیا جائے اور اس عمارت کو نئے سرے سے آباد کیا جائے۔ شامل کرتے ہیں ناروال سے بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے ناروال مدر لینگویج ڈے کے عالمی دن کے موقع پر خدمت گار ویلفیئر سوسائٹی ناروال کے زیر اہتمام پنجابی زبان کے فروغ اور اس کی ترویج کے حوالے سے سرپرست اعلیٰ اے جی خان کی سربراہی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے قبل مادری زبان کے فروغ کے حوالے سے آگاہی ریلی نکالی گئی۔ تقریب کی صدارت صدر بار ایسوسی ایشن محمد ابراہیم ایڈوکیٹ اور سیکرٹری بار نوید سیان سابقہ صدر نالال بادشاہ نے کی، جبکہ ڈاکٹر پروفیسر غلام دستگیر یونیورسٹی آف ناروال احمد رضا نقشبندی سیالکوٹ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ صدر خدمت گار سوسائٹی شوکت علی، چیئرمین مختار کمبور، نائب صدر کرامت علی، جنرل سیکرٹری ندیم ایاز، ناروال معروف شاعر اور ادیب اصغر بھٹی کے علاوہ اشیاء بھر کے وارث شاہ ایوارڈ یافتہ گلوکار محمد عارف سلہری نے بھی شرکت کی۔ مدر لینگویج کے عالمی دن کے موقع پر شرکا نے اپنی پنجابی کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پنجابی ہماری مادری زبان ہے جو کہ ہماری پہچان ہے، اور جو لوگ اپنی پہچان کو بھول جاتے ہیں تاریخ انہیں بھلا دیتی ہے، لہٰذا تشخص کو قائم رکھنے کے لیے اپنی مادری زبان زیادہ سے زیادہ فروغ دینا ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں رنالہ خورد سے۔ اب رخ کرتے ہیں رنالہ خورد کا، جہاں مسلم لیگ نون کے ایم پی اے سید عاشق حسین کرمانی کو پارٹی کی جانب سے 2 مختلف وزارتوں سے نوازا گیا، جس کے بعد ان کی اپنی آبائی گاؤں شیرگڑھ آمد کے موقع پر عوام کا سمندر امڈ آیا۔ رنالہ خورد سے مسلم لیگ نون کے سٹی صدر رانا نذیر کی اپنے سینکڑوں ساتھیوں سمیت شرکت سید عاشق حسین کرمانی کو ایگریکلچر اور لائف سٹاک پنجاب کا صوبائی وزیر بننے پر مبارکباد پیش اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اقوال سے رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ آن نیوز اسلم جاوید۔ منڈی بہاؤالدین میں نوجوان لکھاریوں کے تخلیقی کام کی حوصلہ افزائی اور تنقیدی جائزہ کے لیے سپیریئر گروپ آف کالجز کے کیمپس فار یونیورسٹی پروگرامز نے ایک کانفرنس کا اہتمام کیا، جس میں انگریزی زبان کے نوجوان شاعراء، ناول نگاروں اور ادیبوں سمیت طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پرنسپل پروفیسر محمد کاشف شیخ کے مطابق یہ اپنی نوعیت کی پاکستان کی پہلی کانفرنس ہے جس میں انگریزی ادب کے نوجوان لکھاریوں کو اپنا کام پیش کرنے اور اس میں مزید بہتری لانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا
کیا گیا۔ تقریب کے منتظم ڈرامہ نگار پروفیسر عثمان علی شاہ جہان کے مطابق لاہور، ملتان، گجرات، گوجرانوالہ، منڈی بہاؤالدین سمیت پاکستان بھر سے نوجوان لکھاریوں اور طلباء نے اس کانفرنس میں شرکت کی اور اپنی تخلیقات تنقیدی جائزہ کے لیے پیش کیا، جن میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے انہیں رہنمائی فراہم کی گئی۔ مشیگن یونیورسٹی امریکہ میں کریٹو رائٹنگ کی پی ایچ ڈی اسکالر نائمہ منہاس نے بذریعہ زوم کانفرنس میں شرکت کی اور ادب میں تخلیقی کام کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ڈائریکٹر سپیریئر گروپ آف کالجز منڈی بہاؤالدین پروفیسر ذاکر حسین نے کانفرنس میں شریک لکھاریوں کی کاوش کو سراہا اور امید ظاہر کی ہے کہ یہ نوجوان پاکستان میں انگریزی ادب کی ترویج اور ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ شرکاء نے ادارہ کی اس کاوش کو سراہا اور نوجوان لکھاریوں کے لیے نہایت مفید قرار دیا۔ آخر میں لکھاریوں اور طلباء کو انگریزی ادب کی بہترین کتب بطور تحفہ پیش کی گئی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ فاضل پور سے ہمارے بیورو چیف شوکت لاشاری کی رپورٹ کے مطابق راجنگ پور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو علی عاطف خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ رمضان المبارک خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ تاجر برادری عوام کو ہر ممکن ریلیف دے کر محبت کا اظہار کریں۔ خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی نیکیوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے، گویا عبادتوں کا موسم بہار آ جاتا ہے۔ مسلم معاشرے میں ایک نئی زندگی کی دوڑ جاتی ہے جو رحمتوں اور برکتوں سے لبریز ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب ماہ مبارک کا نہایت شرح کے ساتھ خیر مقدم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو علی عاطف خان نے کہا ہے کہ انسانیت کی خدمت اور خوف خدا کے لیے دکاندار عوام کو بھرپور ریلیف دیں گے۔ عوام کو لوٹنے والے تاجر اپنی اپنی آخرت کو دیکھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ضرورت مندوں اور مستحقین کا خصوصی خیال رکھنا بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ ضلعی حکومت ماہ رمضان میں عوام کو بھرپور ریلیف دینے کے لیے بھرپور کام کر رہی ہے اور عوام جعفری راشن پہنچانے کے لیے مکمل تعاون کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سفید پوش مستحقین کو تلاش کر ان کا حق ان تک پہنچائیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو نہ کسی پر احسان جتانے کی کوشش کریں۔ عوام کی خدمت ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اس موقع پر ریاض آصف خان، عبدالصمد خان، محمد ریاست خان، محمد آصف، محمد عظیم خان اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اغوا کا فرضی وقوع بنا کر پولیس آفیسر کو بدنام کرنے کی کوشش، پاک پتن خبر شامل کرتے ہیں۔ ملک محمد ارشد کمال اونیوز کی رپورٹ کے مطابق دیپال پور کے نواحی علاقہ موضع وسیل کے رہائشی منیر کی بیوی شازیہ بی بی دختر بشیر ارائین نے پلراک پاک پتن گو پیٹرول پمپ کے قریب اغوا کا فرضی وقوع بنا کر تھانہ صدر دیپال پور کے پولیس آفیسر اقبال حسن کے خلاف تھانہ صدر پاک پتن میں درخواست دی، جو کہ جھوٹی ثابت ہونے پر خارج ہو گئی۔ بعد ازاں باعث بی کی رٹ پٹیشن دائر کر دی، جو ایڈیشنل سیشن جج خرم شہزاد پاک پتن کی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ یاد رہے شازیہ بی بی نے اس سے قبل بھی فرضی وقوع بنا کر پولیس آفیسر اقبال حسن وغیرہ کے خلاف محمد بخش کی مدعیت میں اغوا کا مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی، جو ضلع اکاڑہ میں ڈی پی او کی کھلی کچہری اور اینٹی کرپشن میں جھوٹا ثابت ہونے پر درخواست خارج ہو گئی اور اب ضلع تبدیل کر کے مقدمہ درج کروانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ شازیہ بی بی سابقہ رنجش کی بنا پر جھوٹی درخواستیں دے رہی ہیں، جبکہ موجودہ درخواست کے متعلق بھی کاروباری حضرات کسی عینی شاہد یا راہگیر نے کوئی ایسا واقعہ نہ دیکھا ہے اور نہ ہی کسی نے تصدیق کی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے ہمارے اون نیوز کے رپورٹر تیمور بلوچ۔ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد چانسلر اسرا یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر غلام قادر قاضی نے اسری یونیورسٹی کے 21ویں کانوکیشن کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطاب میں ڈگری حاصل کرنے والے طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج آپ اپنے نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس ادارے کا نام مزید بلندیوں تک لے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرا یونیورسٹی حیدرآباد کی واحد نجی یونیورسٹی ہے جو کہ متعلقہ ریگولیٹری اداروں سے تسلیم شدہ ہے۔ غلام قادر قاضی نے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ زندگی میں حالات چاہے کیسے بھی ہوں، لیکن آپ کو ثابت قدم رہنا ہے اور اپنی منزل پر نظر رکھ کر آگے بڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ کانوکیشن کی تقریب سے خطاب میں اسرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر احمد ولی اللہ قاضی نے طلباء ان کے والدین کو مبارکباد پیش کی اور کہا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس ڈگری کو مزید کارآمد بنانے کے لیے اپنی انتھک محنت کو جاری رکھنا ہوگا تاکہ آپ لوگ مستقبل میں اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کر سکیں۔ ڈاکٹر احمد ولی اللہ قاضی نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریگولیٹری باڈیز سمیت اکیڈمی کے دیگر اداروں نے اسرا یونیورسٹی کو پاکستان کی ایک بہترین پرائیویٹ یونیورسٹی کے اعزاز سے بھی نوازا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے
असरा यूनिवर्सिटी का नाम फेमर और वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में भी दर्ज है और आलमी इदारा सेहत ने भी इस बात की तस्दीक की है कि और हमारे MBBS और BDS के प्रोग्राम्स PMDC से मंजूर शुदा है। इसके अलावा शोबा और मिडवाइफरी प्रोग्राम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से मंजूर शुदा है। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ बिजनेस एजुकेशन, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज BBA, BS इंग्लिश, MBA और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स भी मुतलका कौंसिल से मंजूर शुदा है। हम कहते हैं कि आज का जो है वो दिन है बड़ा पुरमसरत दिन है, न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी, और हमारे आगे के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको खुश और कामयाब रखे। क्योंकि 5 साल मेहनत की है उसका नतीजा है, और मेरी मम्मी पापा की मेहनत और जो है खुशी तो बहुत ज़्यादा है कि भी इंशाल्लाह जैसे कि मैंने जो है डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी में अपनी डिग्री ली है, तो मैं आगे भी उसी तरह से जो है अपने पेशेंट्स को और अपने जो है मतलब पब्लिक को उसी तरह से ट्रीट करूँगी और अच्छे से उनको जो है जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना अच्छे से वो करूँगी। 4 साल जो है डिग्री हमने की है, आज ग्रेजुएशन हुई है हमारी, तो आज कॉन्वोकेशन डे हमारा था, आज हमें डिग्री मिली है। बहुत कुछ सीखा है इस यूनिवर्सिटी से, हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है। जो प्रैक्टिस वगैरह की है हम लोगों ने वो इंशाल्लाह आगे उस पर काम करेंगे। मेहनत से वही हमारे लिए काफ़ी है, उसमें हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें कि हमें तौफीक दी कि इतना हम कर सके, और हमारे माँ बाप की जो उन्होंने सख्तियाँ और जो उन्होंने हमारे लिए किया है, हर कोशिश मीन्स के खुद के लिए आसानी नहीं करके हमारे लिए आसानी करके खुद तकलीफ बर्दाश्त किए, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं कि हम बड़े से बड़ा करके उन्हें फ़ख्र महसूस कराएं अगर, और शुक्रिया है यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने हमारे उस्ताद का कि उन्होंने हमारा एक रोल प्ले किया हमें यहाँ तक आने का। अब खबरों का रुख करते हैं डेरा गाजी खान, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की तरफ से घर घर राशन पहुंचाने का अमल जारी है। आज कोट छुट्टा के चक नंबर 2 में मुख्तलिफ जगहों पर राशन तकसीम किया गया। आज अचानक चाह मुल्तानी वाला पर असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा मोहम्मद जैद इकबाल ने अचानक विजिट किया और राशन तकसीम के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर पंजाब पुलिस की तरफ से बशीर हुसैन लुंड, महकमा हेल्थ की तरफ से डॉक्टर मोहम्मद बिलाल और चक नंबर 2 के पटवारी हाफिज आबिद हुसैन भी मौजूद थे। और वहां पर मौजूद लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जाहिद इकबाल ने पूछा है कि आपको किसी किस्म का कोई मसला तो पेश नहीं आ रहा, तो आगे से राशन लेने वालों ने जवाब दिया है कि हमें किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आ रहा, बिल्कुल ही शफाफियत से राशन तकसीम किया जा रहा है। और इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा मोहम्मद जाहिद इकबाल ने कहा है कि अगर किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो साइलिन के लिए मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं, बगैर किसी सिफारिश के आप आ सकते हैं। आपके मसले को इंशाल्लाह मैं खुद सुनूंगा और आपको मुकम्मल इंसाफ दिलाऊंगा। इस मौके पर सरदार खैर मोहम्मद मेहरवानी, वाइस चेयरमैन कोट छुट्टा मलिक मोहम्मद राशिद अराई, चीफ मोहम्मद आसिफ मेहरवानी और मौजूदीन इलाका की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। एलाइट स्कूल कालाबाग मियांवाली में सालाना रिजल्ट की शानदार तकरीब। एलाइट स्कूल कालाबाग की शानदार सालाना रिजल्ट तकरीब, स्कूल के तलबा ने शानदार सलाहियतों का मुजाहरा किया, टैबलो खाके पेश किए जिसे वालिदैन ने खूब सराहा। हमारे ब्यूरो चीफ मियांवाली कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक एलाइट स्कूल कालाबाग की सालाना रिजल्ट तकरीब वाटर पार्क में मुनक्किद हुई। तकरीब की कंपेयरिंग मिस रेशम ने की। तकरीब का आगाज दावत कलाम पाक से किया गया। एलाइट स्कूल के तलबा ने मेहमानों को वेलकम किया और बेहतरीन अंदाज में टैबलो और शानदार खाके पेश किए जिन्हें खूब सराहा गया। तकरीब से खिताब करते हुए अब्दुल मालिक प्रिंसिपल सैयद जाहिद अब्बास शाह ने खिताब करते हुए कहा कि एलाइट स्कूल कालाबाग तलबा में बेहतरीन तालीम के फरोग के साथ साथ इनकी करैक्टर बिल्डिंग पर भी भरपूर तवज्जो मरकूज रखे हुए हैं। हमारा इदारे का मकसद बच्चों की सलाहियतों को उजागर करके इनमें एतमाद पैदा करना है ताकि वो अमली जिंदगी में कामयाब हो सके। इस मौके पर वाइस प्रिंसिपल मैडम सईदा जाहिदा बतूल, एडमन इंचार्ज मैडम मेमूना जिशान, कोऑर्डिनेटर मिस मारिया आमिर, कोऑर्डिनेटर मिस कायनात, इंचार्ज प्री सेक्शन मिस सिदरा नूर और एक्टिविटी इंचार्ज मिस सुम्बल ने कहा है कि एलाइट स्कूल के इंतजामिया इदारा में मयारी तालीम के फराहमी के लिए कोशा है। इसके लिए वालिदैन की भी भरपूर रहनुमाई और दिलचस्पी जरूरी है ताकि हम बच्चों को माशरे का एक बेहतरीन और कामयाब इंसान बना सकें जो मुल्क की तरक्की में अपना नुमाया किरदार अदा करने के काबिल हो जाएं। और आखिर में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में शील्ड तकसीम की गई। इस तकरीब में सहाफ़ी हजरात को भी शील्ड दी गई। तकरीब में हजारों मर्द ख़वातीन ने शिरकत की।
खबर शामिल करते हैं कैसर खान मरी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी टंडोजाम टीचर्स एसोसिएशन का इजलास सदर फहद नज़ीर खोसू की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर खालिद तालपुर, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रोफेसर डॉक्टर इमदाद हुसैन लगारी, फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर असमतुल्ला काका, प्रोफेसर डॉक्टर अहमद नवाज तनियो और दीगर ने शिरकत की। इजलास में ज़रई यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की जानिब से साजा के मसाइल हल करने में गैर संजीदगी का इजहार किया गया। इजलास के शुरका ने कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया साजा के मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उसाजा 2021 से सिलेक्शन बोर्ड के इंतजार में है और दूसरी जानिब सिंध यूनिवर्सिटी, सूफी यूनिवर्सिटी, बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी और लाड़काना यूनिवर्सिटी समेत दीगर यूनिवर्सिटियों में सिलेक्शन बोर्ड का इनेकाद किया गया। ज़रई यूनिवर्सिटी इंतजामिया की नापाक अज़ाइम और नाइंसाफी की वजह से ज़रई यूनिवर्सिटी के बेहतरीन उसाजा ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है, जो कि इदारे के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। एक तरफ सिलेक्शन बोर्ड पर पाबंदी का जवाब पेश किया जा रहा है और दूसरी तरफ गैर कानूनी कमेटी के जरिए अपनी हर बरादरी के लोगों को उमरकोट कैंपस में रखा जाता है। सोटा के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि यूनिवर्सिटी को माली तौर पर मुस्तकिम करने का दावा करने वाले डायरेक्टर फाइनेंस ने अरसा दराज से उसाजा की माली हकूक अदा नहीं किए। तनख्वाहों के फर्क, मुआवजे के बिल, टेलीफोन अलाउंसेज, आर्डरली अलाउंसेज, लीव इनकैशमेंट की रकम और दीगर बिल अदा नहीं किए गए, जो डायरेक्टर फाइनेंस की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इजलास में फैसला किया गया कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया साजा के जायज मसाइल हल करे, बसूरत दीगर 20 मार्च से तहरीक शुरू की जाएगी। खबर शामिल करते हैं हरिपुर से। हरिपुर तरबेला रोड पर वाक़या जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल हॉस्पिटल की पहली सालगिरह की पुरवकार तकरीब का एहतमाम, जिसमें सीनियर डॉक्टर्स, मीडिया नुमाइंदगान के अलावा अस्पताल का अमला और मालकान शरीक थे। पहली सालगिरह का केक भी काटा गया और धूमधाम से सालगिरह मनाई गई। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ हरिपुर नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। हरिपुर तरबेला रोड पर वाक़या जदीद सहूलियात से आरास्ता व पैरास्ता स्टेट ऑफ द आर्ट हरिपुर इंटरनेशनल हॉस्पिटल का 1 साल मुकम्मल, जिस पर अस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से सालगिरह की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें अस्पताल के अमले और मालकान के अलावा सीनियर डॉक्टर्स और मीडिया नुमाइंदगान ने कसीर तादाद में शिरकत की और केक काट कर सालगिरह की तकरीब का आगाज़ किया। इस मौके पर सीनियर डॉक्टर दिलनवाज खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इनको किसी दूसरे सिटी की तरफ मूव करने की ज़रूरत ना पेश आए। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज और साथ में रेडियोलॉजी में सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट, आईसीयू डिपार्टमेंट, गायनी डिपार्टमेंट और उसके अलावा हमारा जो था डेंटल डिपार्टमेंट हमने ओपन किया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने इन चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, जिसमें अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक एंजियोग्राफी इंशाल्लाह इंस्टॉल कर दी है, जिसके सून आफ्टर ईद हमारा प्लान है कि हम इसको इफ्तिताह कर लें। उसके अलावा हमने लैब के अंदर स्पेशल केमिस्ट्रीज़ की और एलाइज़ा की मशीनें यहाँ पे प्रोवाइड की हैं, जो इंशाल्लाह चंद दिनों में उसका भी इफ्तिताह कर लेंगे कि हमारे लोगों को जो टेस्ट होते हैं वो उनको बर वक्त रिपोर्ट्स मिलें, जिसकी वजह से डॉक्टर साहिबान को डिसीजन करने में आसानी हो। इंशाल्लाह आप लोगों की मददों, दुआओं और अमले की तगदो के साथ हमारे एफर्ट्स ये है कि हम इसको एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाएं और हमारे लोगों को भी इसमें फैसिलिटीज़ हो, जो कम खर्चे के अंदर अच्छी आपको मेडिकल की सर्विसेज प्रोवाइड हो। हमारा फोकस इस वक्त ये है कि हम नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करें, जिसके लिए हमारी डॉक्टर साहिबान जो हैं, हमारी गायनाकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रुबीना बख्तज़ादा साहिबा, बहुत एफर्ट्स करती हैं, जो 6-6 घंटे तक पेशेंट्स के साथ टाइम देती हैं। और उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि हम जब भी यहाँ पे कोई भी प्रोसीजर करें तो उसको स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस के ऊपर करें, ना कि रवायती अंदाज में हमने इंजेक्शन लगा दिया या रवायती अंदाज में किसी पेशेंट को हैंडल किया। हर रूम के अंदर, चाहे वो वार्ड है या रूम है, फैसिलिटीज़ हमने सेम प्रोवाइड की हैं कि नॉन अफोर्डिंग कोई शख्स है या अफोर्डिंग शख्स है, उसको बेड भी वही प्रोवाइड किया जाए जो एक अफोर्डिंग को किया जा रहा है, जब वही बेड उसको भी दिया जाए जो नॉन अफोर्डिंग का दिया जा रहा है। तो इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि आप लोगों के तावन के साथ और हमारे अमले की और हमारी काफ़िशों के साथ इंशाल्लाह हम एक दिन इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि हरिपुर इंटरनेशनल सर्विसेज जो हॉस्पिटल है वो सर्विसेज देने में डिफरेंट सिटीज़ से सबकत हासिल कर ले। उसमें हमने इक्विपमेंट के ऊपर भी हमारा स्पेशल फोकस है कि हम लेटेस्ट किस्म की मशीनरी यहाँ पे, जैसे लेप्रोस्कोप मशीन्स हैं हमारी, हमने मोबाइल एक्सरेज हो गए, सीआम हो गए, ये सारे हम लेटेस्ट वर्जन, और हमारी जो एंजियोग्राफी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लेटेस्ट वर्जन किया है, और सिटी स्कैन हम 16 स्लाइस के साथ इंशाल्लाह इस वक्त यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनका मज़ीद ये कहना था कि हम हरिपुर के आवाम के लिए 24 घंटे हाजिर हैं। हमारा मिशन लोगों को अच्छी सेहत जदीद सहूलियात के साथ मुहैया करें।
जिसमें नादार और गरीब लोगों के लिए KTS वेलफेयर के तामन से मसावी इलाज मुआवजा की सहूलियात मैसर होंगी और लोगों को एबटाबाद या रावलपिंडी रेफर करने के बजाय अपने घर की दहलीज पर तमाम तबी सहूलियात दस्तयाब होंगी। आरावाला में जिले इंतजामिया के जरिए तमाम जश्न बहारा का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में सकाफती अशिया के स्टॉल सजाए गए, जबकि बच्चों ने टैबलोस में मुख्तलिफ सूबों की सकाफत को उजागर करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। आरावाला से आमिर रजा तूर की ये रिपोर्ट देखिए। आरिफवाला में जिली इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम मेला जश्न बहारा का इनेकाद किया गया। खूबसूरत पंजाबी लिबास ज़ेब तन किए तलबा व तालबात ने ज़बरदस्त टैबलूज पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। तलबा व तालबात की जानब से सजाए गए सकाफती अशिया के स्टॉल्स भी देखने वालों की तवज्जो का मरकज बने रहे। पंजाबी लिबास में मलबूस तलबा की टोलियों ने ढोल पर भंगड़े डालकर फेस्टिवल की रौनक को चार चांद लगा दिए। इसका मकसद ये था कि जो हमारे बच्चे हैं, हम आजकल की जनरेशन को बताएं कि पाकिस्तान में कितनी मुख्तलिफ सकाफतें मौजूद हैं, उनके असल रंग क्या हैं और उनसे किस तरह से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस दौरान हमने बहुत इंजॉय किया, हमें बहुत अच्छा लगा। इस तरह के फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए। चीफ ऑफिसर बल्दिया वकास अहमद का कहना था जश्न बहारा के इनकाद का मकसद शहरियों को तफरीह के मौके फराहम करना है। आज तहसील आरफवाला में जश्न बहारा का प्रोग्राम इनकाद म्यूनसिपल कमेटी ने किया है, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट और स्कूल ने भरपूर हिस्सा लिया है और बड़े खूबसूरत स्टॉल भी लगाए गए हैं और परफॉर्मेंस भी दी गई हैं। शहरियों ने सजाए गए रंगारंग सकाफती मेले में खूब लुत्फ उठाया। शहरियों का कहना था इस तरह के तफरीह मौके जहनी थकावट दूर करने का बायस बनते हैं। खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से। DPO सियालकोट की हिदायत पर DSP तारिक ने अमरोज थाना कोटली लोहारा में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में DSP मलिक तारिक ने SHO के हमरा कचहरी में आई साइलिन के 20 से ज्यादा केसेस की तफ्तीश और मसाइल सुने और तफ्तीशी ऑफिसर्स को मेरिट पर तफ्तीश करने और जल्द मुकदमात निपटाने की हिदायत जारी की। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर अरशद चेची, ASI कैसर, सेठ वकास, शहबाज ढड्डी, इब्राहिम भट्ट, सब इंस्पेक्टर शबीर और मुहर्रर रिजवान गुजर मौजूद थे। DSP ने खुली कचहरी में प्रेस क्लब रजिस्टर कोटली लोहारा के चेयरमैन अराकीन को चौक कोटली लोहारा में ट्रैफिक वार्डन के तैनाती और दिन के वक्त मराला रोड पर डंपर न चलने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर रिजवान ताहिर, एडवोकेट सैयद आरिफ, हुसैन शाह, कामरान सुलहरी, मलिक यूसुफ, मलिक बिलावल और साइलिन की कसीर तादाद मौजूद थी। खबर शामिल करते हैं हरिपुर से। हरिपुर में वाक़िया जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज स्कूल की सालाना तकसीम इनामात की तकरीजी हॉल में MD स्कूल हज़ार बशारत खान तनोली के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुई, जिसमें साबिक़ तहसील नाज़िम एडवोकेट आगा शबीर अवान, सियासी समाजी शख्सियत शुएब खान शहजाद तनोली, जर्नलिस्ट नासिर अमीन जर्नलिस्ट और इब्रार खान तनोली के अलावा बच्चों के वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बच्चों ने तकरीब में मिली नगमे, नाते और टैबलो पेश किए, जिस पर बच्चों को ट्रॉफियां और इनामात दिए गए। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ हरिपुर नासिर अमीन की इस रिपोर्ट। हरिपुर जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात निजी हाल में मुनक़्क़द हुई। तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी साबिक़ तहसील नाज़िम एडवोकेट आगा शबीर, सियासी समाजी शख्सियत शुएब खान तनोली, सहाफ़ी शहजाद तनोली और नासिर अमीन खान ने शिरकत की। MD स्कूल हज़ार बशारत खान तनोली ने मेहमानों की आमद पर तलाई हार पहनाए और फूल निशावर करके खुशामदीद कहा। इस मौके पर मेहमानों समेत MD स्कूल हज़ार बशारत खान तनोली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जिन्ना इंस्टीट्यूट प्राइवेट स्कूल में मेरे भाई, मेरे दोस्त शुएब खान तनोली के साथ बशारत खान तनोली ने आज हमें बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी इस बेहतरीन स्कूल में इनवाइट किया है। हम जब बाहर से आए हैं, जिस शानदार अंदाज में हमारा जो इस्तकबाल किया गया है, मैं बशारत खान का मशकूर हूँ। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब मैं अंदर दाखिल हुए हैं हम, तो बच्चों की डिसिप्लिन, बच्चों का टैलेंट और बच्चों की जो खूबसूरत टैबलो और स्पीचेस कर रहे हैं, मुझे आज फ़ख्र इस बात पे है कि चूँकि मेरा ताल्लुक़ भी सिकंदरपुर से है और सिकंदरपुर में इतना बेहतरीन इंस्टीट्यूट, इतना बेहतरीन इदारा, जिसमें मैं समझता हूँ कि 2 साल की मेहनत बशारत खान की लग रही है। ऐसे इंशाल्लाह ताला मेरे बच्चों से, मेरी बच्चियों से यहाँ से डॉक्टर्स भी निकलेंगे, इंजीनियर्स भी निकलेंगे, फौजी ऑफिसर्स भी निकलेंगे। बशारत खान को मैं
मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं MD बिशारत खान तनोली शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर मेरे पास आए हैं। इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने मुझे हौसला दिया, मुझे एक हिम्मत दी कि मैं ये इंस्टीट्यूट चलाने के काबिल हुआ, बनाने के काबिल हुआ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो सालाना बच्चों की प्राइज़ सेरेमनी, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, वो हो रही है। और ये अपना कीमती वक्त निकाल के जो हमारे इस इंस्टीट्यूट को जो इन्होंने रौनक बख्शी है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज के बच्चों का टैलेंट देखकर शुरा पर सकता तारी रहा। बच्चों ने तकरीब में नातें, मिली नगमे और टैबलो पेश किए। बच्चों की अच्छी कारकर्दगी पर हुस्न कारकर्दगी शील्ड, ट्रॉफियाँ और इनामात तकसीम किए गए। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज स्कूल के बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का माहौल भी फराहम किया जाता है, ताकि ये बच्चे अच्छे माहौल में इल्म के हुसूल से मुस्तकबिल में मुल्क कौम की खिदमत कर सकें, जिस पर स्कूल इंतज़ामिया खराज तहसीन की मुस्तहिक है। बच्चों की कारकर्दगी को देखकर वालिदैन ने भी स्कूल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और मसरत का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं हरीपुर से। प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के चेयरमैन सलीम खान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बॉयज़ कैंपस में इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन बोर्ड एबटाबाद शफीकुर रहमान समेत साबिक प्रिंसिपल्स, साजा और बच्चों के वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेकर पोजीशंस लेने वाले तलबा और तलबात को इनामात, तारीफ़ इस्नाद और मेडल से नवाजा गया। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ हरीपुर नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के चेयरमैन सलीम खान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बॉयज़ कैंपस में इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें एबटाबाद बोर्ड के चेयरमैन शफीकुर रहमान अमान समेत साबिक प्रिंसिपल्स, असातिज़ा और बच्चों के वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेकर पोजीशन लेने वाले तलबा व तलबात को इनामात, तारीफ़ी असनाद और मेडल से नवाजा गया। इस मौका पर शुरा ने गुफ्तगू करते हुए कहा, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चर्च पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज़ की रहे यार, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। एज ए चेयरमैन मैंने ज्वाइन किया, मुझे कहा गया ये क्या SLO बेस की आपने ये बात कर दी, ये तरह का मिसरा कहाँ से लाए हैं, ये स्टोरी क्या है। मैंने कहा जी ये हमारा करिकुलम का अनइम्प्लीमेंटेड पोर्शन है, अनएग्जीक्यूटेड पोर्शन है। ये करिकुलम का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आम हिस्सा था जिसको हमने अभी तक वो लागू ही नहीं किया बच्चों पर। मैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की तालिब इल्म हूँ। मैंने साइंस टेस्ट ICC में हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन और टीचर की मेहनत है जिसमें मैंने पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हासिल किया। My name is Mahnoor Saif and I am the student of Intermediate Part 2. Recently I have appeared in the Competence Natural Science test and with the blessing of Allah I am receiving my honors certificate. It is an honor and pleasure for me to be here. तो मेरा नाम अजवा है, मैं जमात चहारम की तालिब इल्म हूँ। मैंने ICC में हिस्सा लिया, इसमें मैं पास हुई। Assalamualaikum, my name is Walida Zeib and I am a student of an intermediate part 2. Recently I appeared in Copernicus Natural Science test and with blessing of Allah Almighty I have received an honorable award. Assalamualaikum, dear principal and our marvelous teacher. I am thankful for your investing your time and resources in our education. Your sport has not only impacted but our performance in the competition but also overall as growth as aspiring science students. मैं नहायत ही मशकूर हूँ सलीम खान साहब का, वहीद खान साहब का और पूरे टीचर स्टाफ का जिन्होंने बच्चों को इस मुकाम तक पहुँचाया और माशाल्लाह बच्चों ने मेहनत की और मैं आज बड़ी इस मुकाम पे पहुँच के खुशी महसूस कर रहा हूँ कि माशाल्लाह मेरे बच्चे ने ब्रॉन्ज मेडल और सर्टिफिकेट हासिल किया। तकरीब में MD पाकिस्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सलीम खान, प्रिंसिपल वहीद खान, असातिज़ा कराम समेत शुरा व वालिदैन ने बच्चों की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। बच्चों को बेहतरीन माहौल में तालीम फराहम करने पर वालिदैन ने मसरत का इजहार किया। बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर उम्मीद वासिक है कि ये बच्चे इन मामारान वतन के ज़ेर साया न सिर्फ अपने स्कूल बल्कि पूरे इलाके का सर फ़ख्र से बुलंद करते हुए मुस्तकबिल में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाएंगे और मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगे।
जिला डेरा गाजी खान तफसीलात के मुताबिक DPO अहमद महिउद्दीन की हिदायत पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जिला भर में चेकिंग का सिलसिला जारी है। इसी चेकिंग के सिलसिला में चेक पोस्ट सखी सरवर पुलिस ने स्मगल होने वाले लाखों रुपए माली सामान जिसमें 34 कार्टन सिगरेट, 40 बैग खुश्क दूध, रतन सपारी, 13 कार्टन नस्वार, 1 कार्टन वाटर बोतल, 20 कार्टन और 32 अदद मोबाइल फोन को कब्जा में लेकर कार्रवाई के बाद कस्टम हकाम के हवाले कर दिया गया है। जहां चेक पोस्ट से सखी सरवर फयाज अहमद लशारी SI ने कहा है कि नॉन कस्टम अशिया की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। नॉन कस्टम अशिया की स्मगलिंग करने वालों के साथ किसी भी किस्म की कोई रायात नहीं बरती जाएगी। मजीद सिक्योरिटी के पेश नज़र चेक पोस्ट सखी सरवर पुलिस ने चेकिंग के सिस्टम को सख्त किया। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर वसाइल बुरे कार लाए जा रहे हैं।